Assalamu alaikum, everyone. I hope all of you are fine. Today, we'll be discussing a topic that is electronic configuration. What is electronic configuration? Before starting electronic configuration, I guess अगर हम थोड़ा सा overview लें atomic structure का, so it would be much easier for us to know that what exactly is electronic configuration, right? If you pay attention towards the structure, for example, let me just remove this screen for a while. Let's suppose this is an element. The name of this element is sodium, right? Now, sodium has the atomic number of 11 and mass number 23. So we build the atomic structure. हम कैसे बनाते हैं? This would be the nucleus. First shell, how many electrons in the first shell? 1, 2. Second shell में कितने electrons आते हैं? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और अगर हम third shell देखें, so as we are making sodium, so how many electrons will be there in the outermost shell? 1. तो इस तरीके से we build up the atomic structure of any element. Now, अक्सर क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो ओ लेवल्स के अंदर, लेकिन ए लेवल्स में ये थोड़ा हायर लेवल पे कॉन्सेप्ट कैसे डिस्कस होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? Electronic configuration is the arrangement of electrons within the energy levels, subshells, and orbitals of an atom or molecule. It dictates an element's chemical properties, reactivity, and valency. So basically, आप अपने shells के arrangement इसमें explain करते हो कि first shell में कितने electrons आएंगे, कैसे आएंगे, and किस propagation में आएंगे, किस proportion में आएंगे. Yeah. Now, हम डिस्कस करने लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. In order to know electronic configuration, we have to know what is the F-Bohr principle. So what is F-Bohr principle? The F-Bohr principle states that electron fills the lowest energy atomic orbital first before occupying higher energy level. अब इसका क्या मतलब है? इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? Let me make this particular structure in front of you. For F-Bohr principle, मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ F-Bohr principle को बनाते कैसे हैं. और ये जो बात यहाँ लिखी है लोवेस्ट एनर्जी, तो लोवेस्ट एनर्जी में फिलिंग कैसे होती है, विल बी डिस्कसिंग दैट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f. अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये जो हमारे पास S, P, D, F है, basically what is this? So SPDF is something that periodic table is subcategorized into these. Now, if I show you the periodic table, so this is the S group. If I annotate on it, इसको बोलते हैं S, इसको बोलते हैं D, इसको बोलते हैं P ब्लॉक एंड इसको बोलते हैं F ब्लॉक. तो इस तरह पीरियोडिक टेबल जो है वो सब डिवाइडेड हुआ है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. ओके, अब आपने एरोज ड्रॉ करने हैं. कैसे ड्रॉ करेंगे? एरो स्टार्टिंग फ्रॉम 1s, 2s, 2p. ऐसे आपने वर्ड्स के हिसाब से you have to go down alongside the numbers. Now you have to know, as we already know, the formula to fill this particular structure. What is the formula? The formula to fill this structure is 2n square. So we know that S will contain how many electrons? 2. This will also contain 2. P will be 6. 2, 6, 10, 2, 6, D10, 4F14. So F shall contain the number 14.
नाउ टेक्निकली दीज आर टू सिंपल एंड इक्विवेलेंट थिंग। अगर आप इसको देखें, 2n स्क्वायर के फॉर्मूला को जब हम डिकोड करते हैं, 1 स्क्वायर टू 2 स्क्वायर टू 3 स्क्वायर टू 4 स्क्वायर, इसको हम सिंपल मैथमेटिक्स से अगर फाइंड आउट करें, हमें क्या मिलेगा? 2, 8, 18 एंड 32। इसको क्या कहते हैं? दिस इज द के शेल, द फर्स्ट शेल, दिस इज द एल शेल, दिस इज द एम शेल, दिस इज द एन शेल। ये हमारी डिस्कशन हो चुकी है ओ लेवल्स के कोर्स के हिसाब से। अब लेट्स कम बैक टुवर्ड्स द न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज द एफओ प्रिंसिपल, and how do we write the electronic configuration of the elements given in the periodic table? So now what will you do? So yeah, I was telling about the similarity. First, pay attention. This is 2, 6 plus 2, 8, 10 plus 6 plus 2 is 18, 14 plus 10 plus 6 plus 2 is 32. Yeah, so it is the same arrangement which you have to learn. So for today's lesson, I'm discussing that how do we write the electronic configuration for certain elements from the periodic table. Okay, now बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है? बच्चा कंफ्यूज यहाँ पे होता है जब उसको क्वेश्चन दिया जाता है। अब इस पर्टिकुलर चीज के ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। इस क्वेश्चन क्या बनते हैं कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक configuration of the element of the sodium element of the sodium element, एक ये क्वेश्चन आता है। फिर इसी का एक क्वेश्चन होगा, draw the structure of draw the atomic structure of sodium, draw the atomic structure of sodium, right? अब इसमें आपने क्या सीखना है? इसमें आपने दो चीजें सीखनी है कि जब आपको ये क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और जब आपको आएगा कि ड्रॉ की एटॉमिक स्ट्रक्चर, तब आपने क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। अब जहां तक ड्रॉ की बात थी, तो हम ये ड्रॉ कर चुके ये स्ट्रक्चर सोडियम का। दिस इज हाउ यू ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। नाउ इफ वी वांट टू टॉक अबाउट दैट राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे Na। ओके, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सोडियम अगर आप देखें, मैं आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाती हूँ। If you pay attention towards over here, this is sodium Na1123. Now what is 11 and 23? 11 is the atomic number or 23 is the mass number. 11 is the atomic number and 23 is the mass number. Now how would you like understand this concept कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करते हैं और किस बेसिस पे करते हैं? हम 11 is the atomic number, 23 is the mass number, right? तो अब इसको कैसे आपने कंसिडर करना है, इस चीज को आपने माइंड में रखना है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इन ऑर्डर टू डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने अभी डिस्कस किया, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, that 11 is the atomic number, 23 is the mass number. So remember this key point, that whenever you will do electronic configuration, you will always use the atomic number. तो क्या मतलब हुआ कि अगर हम सोडियम ले रहे हैं तो हम 11 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, हम 23 दैट इज द मास नंबर, इसको नहीं कंसिडर करेंगे। तो अब हमने अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जस्ट आपने अपना ये टेबल जो है आपका प्रिंसिपल का अपने सामने रखना है। कैसे करेंगे? Na इज इक्वल्स टू, पहले क्या आता है? 1s2। दूसरी एरो कहाँ जा रहा है? ये एरो आपने एरो की बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। दूसरा एरो कहाँ जा रहा है? 2s2। फिर एरो देखें कहाँ जा रहा है? शाबाश, 2p6। ओके, फिर एरो किधर जा रहा है? 3s2। अगर तो मैं अब यहाँ पे 3s2 लिख देती हूँ, आई एम गोना होल्ड फॉर अ व्हाइल। अब यहाँ पर आपने काउंट करना है,
कि आपने तो 11 बनाने हैं। तो व्हाट डू वी हैव ओवर हियर? 2, 6 plus 2 8 and 2. So what is 2 plus 8 plus 2? 2 plus 8 plus 2 is equals to 8, 9, 10, 11, 12. This is wrong. So it means we have to fix the last number and we can change the last number. So what it would be? 3s1. ठीक है, 3s1. 3s1 का मतलब क्या हुआ? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. अब इसको काउंट करें। 2 plus 8 plus 1. तो ये क्या बनता है? 11. That is the electronic configuration of sodium. ठीक है, यहां से आपको ये चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे करते हैं। ओके, अब ये जो आपके पास 1s1 ये चीज है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? 1 आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। 1s2, 2s2 इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो एक नंबर आपको 1 की फॉर्म में छोटा नजर आ रहा है, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एस क्या है? सब शेल है, मैंने आपको बताया पीरियोडिक टेबल सब शेल्स में डिवाइड हुआ हुआ है, दैट इज SPDF, राइट? नाउ वी हैव let's try one more from this particular table over here. So I will be showing you chlorine, and then we'll be doing we will be doing calcium, right? So let me just write over here so we can see, हमें टेबल भी नजर आता जाए और हम साथ साथ अपना काम भी करते जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं, मैंने बोला है कि हम क्लोरीन करते हैं। क्लोरीन को पीरियोडिक टेबल से पहले देखें। क्लोरीन क्या है? 17 एंड 35 है, 35.5 है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 17 एंड 35.5 वी विल यूज 17। सो कैसे करेंगे हम इसको? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज इक्वल्स टू, पहले क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, एरोज देखते जाएं साथ साथ आप लोग प्लीज। 3s2, 3p6। अब यहाँ पे आप थोड़ी देर रुकें, टेक अ डीप ब्रेथ, इसको काउंट करें। 2, 6 plus 2 8, 6 plus 2 8। तो हमें 8 तो नहीं चाहिए, 8 plus 8 16, 17, 18, ये तो बहुत ज्यादा हो गए। हमें क्या चाहिए? वी वॉन्ट ओनली 17। तो अगेन हम क्या करेंगे? व्हाट विल हैपन? 3p, pp क्या हो जाएगा? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इसमें हम क्या ऐड करें? दैट वुड बी 5। अब इसको आप ऐड करो तो क्या बनता है? 2, 6 plus 2 8, 5 plus 2 7। So what is the electronic configuration of chlorine? It is 2, 8, 7 and 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, as you can see over here as well कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी ये आती है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताती हूँ इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक तो इस डेफिनेशन में है दैट इट फिल्स द लोवेस्ट एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल फर्स्ट। आप नोट कर रहे हो कि वी हैव बीन फिलिंग द एनर्जी ऑर्बिटल फ्रॉम 1s, नॉट फ्रॉम 4f। सो इट मीन 1s इज द लोवेस्ट, लाइक लेस एनर्जी है ना उसकी, तो उसकी लोएस्ट एनर्जी है। ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग इज, why do we do this? Why we cannot just simply make this simple atomic structure and just get done with it? अब उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ। We have a particular element known as carbon, calcium, sorry, मैं आपको कैल्शियम बताती हूँ। Generally, the students of O levels, I would say, like उनका इनिशियल ईयर होता है, बिगिनर्स होते हैं वो, तो उनको जब कार्बन बनाने को कहो तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी मैम, आपने तो हमें ये पढ़ाया है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं। तो कैल्शियम आप यहाँ पे देखो कि दिस इज कैल्शियम 2040, 20 इज द एटॉमिक नंबर, तो हम कैल्शियम 20 के बेस पे बनाएंगे। अगर तो मैं स्ट्रक्चरली देखूँ ना, तो कैल्शियम ऐसे बनेगा। कैल्शियम कैसे बनेगा? कैल्शियम बनेगा ऐसे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे शेल में
तीसरे शेल में अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर क्या बनना चाहिए? 18। बच्चे क्या बनाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और वो कहते हैं ये ले मैम हमने आपके लिए कैल्शियम का स्ट्रक्चर बना दिया। This calcium structure is absolutely wrong. The reason, what is the reason behind it? Because this is not how the calcium shells are divided. And one more very, very, very important thing, जो कि अभी आपको नोट कर लेनी चाहिए अपने पास, वो ये है that the outer shell, the outermost shell represents the group number. क्या कहते हैं? ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट करता है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? आप गौर करें इस चीज को। अभी मैंने आपके सामने क्लोरीन बनाया था। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में क्या आ रहा है? कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? ये देखें, यहाँ पे नोट करें, 5 और 6, सॉरी 5 + 2 7, 7 आ रहा है ना। अब जरा क्लोरीन को देखें कि किस ग्रुप में है। ऐसे ग्रुप पढ़ते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 एंड ग्रुप 7। तो मैंने भी आपको क्या बात लिखवाई कि द आउटर मोस्ट शेल रिप्रेजेंट्स द ग्रुप नंबर। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी और दिस रूल अगर मैं देखूं तो जो बच्चे बनाते हैं कैल्शियम, उसका आउटर मोस्ट शेल में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें तो 10 कहा जा रहा है। तो क्या पीरियोडिक टेबल में इज देयर एनी 10th ग्रुप? पीरियोडिक टेबल में तो टोटल 8 ग्रुप है जब से पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुआ है टिल नाउ। डज इट मेक सेंस टू यू गाइस? अब इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज इंपॉर्टेंट कि वो डिस्कस करता है कि इलेक्ट्रॉन की ऑन द बेसिस ऑफ एफबॉफ प्रिंसिपल फिलिंग कैसे होगी। नाउ पे अटेंशन, आपको खुद नजर आएगा कि क्यों वो चीज गलत है। प्लीज पे अटेंशन एंड विद मी राइट डाउन कैल्शियम। कैल्शियम हम 20 लेंगे। अच्छा आप देखें, 1s2 2s2 2p6। मैंने बार बार कहा मैं एरोस फॉलो कर रही हूँ। देखें ये 2p6 है, इसके बाद नीचे आ रहा है 3s2 3p6। 3p6 के बाद क्या आ रहा है? ये 3p6 है, ये एरो नीचे जा रहा है, सो इट गेट्स 4s2। अब अगर यहाँ पे आप काउंट करो इसको, ये है 2, 6 + 2 8, 6 + 2 8 एंड देन 2। So what is 2 + 8 + 8 + 2? It is equals to 20. तो आपको अब अगर मैं इसका इस बेसिस पे स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनता है? स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। दिस इज द न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल 1 2, सेकंड शेल 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे शेल में कितने बन रहे हैं? यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली इसने 1 2 बनवाया सेकेंड शेल, और अब मैं थर्ड शेल बनाया। ये 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? थर्ड शेल। थर्ड शेल में कितने बनाऊं? 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर फोर्थ शेल भी है जो ये बता रहा है, उसके अंदर 1 और 2। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। अब जरा हम जाके देखते हैं कि कैल्शियम किधर है। कैल्शियम किधर है? ये देखिए, कैल्शियम इज प्रेजेंट इन ग्रुप 2। दिस इज ग्रुप 1 एंड दिस इज ग्रुप 2। I hope you understood the topic, that why electronic configuration is important and how do we do electronic configuration, right? I'll see you in the next video in which I will show you how to do box electronic configuration and from like where we have to write down the, like from which part we have to start putting the electrons and all. Okay, thank you. Take care. Allah Hafiz. Bye-bye.